Hello, students. Hello, students. हेलो. यस मिस. हाँ, अपने अपने कैमरे ऑन करना. अभी सर ज्वाइन करेंगे लेक्चर. हेलो. 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 हेलो स्टूडेंट्स. यस मिस. हाँ, सर आने के बाद लेक्चर स्टार्ट होगा ना, तब अपने कैमरे ऑन करना. ओके मिस. हाँ हाँ ठीक है. पेन कुठे पेन. Good afternoon, all of you. I hope you can hear Good my afternoon, voice sir. and see the screen. So we are going to start with the first chapter of physics for 11th standard. Hope all the students are in. Just waiting for one or two guys to join, then we can start with the first chapter. Units and measurements. Okay, do you have the textbooks with you? Say yes or no. Do you have the textbooks with you? Have you bought the textbooks? Please switch on your mic and answer me. No, sir. Okay. So you have to buy this textbook, okay, of physics for 11th standard, okay.
इसको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक भी बोलते हैं. So in the college we call it government textbook. In the school तक अपन इसको textbook बोलते हैं. तो you go to the shop and buy the textbooks या government textbooks for all the subjects like physics, chemistry, maths. You will be needing that throughout this year, 11th standard, and also for the 12th standard. Okay, and if you go through the textbook, those of you who have it in front of you, you will see there are 14 chapters. In physics, there are 14 chapters. उसमें से पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस या यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. ये जो चैप्टर्स है दे आर ऑन वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस लाइक लाइट. 2 chapters are dedicated to light. 2 chapters are dedicated to electricity, current electricity. 2 chapters are dedicated to magnetism. Okay, like you can see magnetic effect of electric current and magnetism. So अलग-अलग फील्ड ऑफ फिजिक्स से 2-2, 3-3 चैप्टर्स दिए हैं. मैकेनिक्स पे बेस्ड है. नाउ व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स मतलब रिलेटेड टू फोर्स. फोर्स पे बेस्ड 2-3 चैप्टर्स है लाइक ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. ओके, फिर हीट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. उस पे भी बेस्ड है 2-3 चैप्टर लाइक थर्मल प्रॉपर्टीज, mechanical properties. Then sound is a branch of physics. Even sound पे है एक chapter. So वैसे हर एक branch पे, हर एक field पे थोड़ा एक chapter है जो 12th standard में और गहराई से हम study करेंगे. Plus 12th standard में और भी है जैसे modern physics वगैरह. Modern physics मतलब radioactive substances and all उसमें सीखते हैं. You must have heard, radioactive substances, alpha, beta, gamma rays जो emit करते हैं. तो वो सब 12th में आएगा. सो ऐसा है. तो ये बेस बनता है अपना. 11th standard is a base for 12th standard. Okay, you cannot have a good 12th standard foundation without having a good 11th standard knowledge. मतलब ये in depth पढ़े बगैर तुम 12th standard में you cannot expect to have a good foundation. Okay, so ये सब basis है. मैं बता इसलिए रहा हूँ because थोड़े colleges, because of this lockdown and all, no colleges they might say कि अरे ये portion omitted है, ये chapter नहीं है, and students also take it lightly. But ऐसा नहीं होना चाहिए. Okay, ये lockdown हटेगा 12th standard में जब जाओगे तो वो बहाना नहीं चलने वाला है. Okay, because of lockdown we didn't study that because of this was omitted in our college. जैसे sound chapter omit किया तो ऐसा नहीं है कि 12th standard का sound चला जाएगा. Okay, 12th standard में sound का chapter रहने नहीं वाला है, and because you didn't study that then problem हो सकता है. Okay, this ये बोलना जरूरी है. Regarding my introduction, I am Professor Siddesh Pai. I have done my electronics engineering and I teach physics in various classes. So with that, I think all are in now. 10 students were expected, 9 are there, 10th one will join soon. So now we can start with units and measurements. Okay, सबसे पहले keep different books for different subjects. Okay, just because we are not physically present just to see, ऐसा मत करना एक बुक में सब लिख दिया. ओके, ये गलती मत करना क्योंकि ये आज जो तुम लिख रहे हो you have to keep it with yourself right up till the CET exams. Okay, just try to understand कितना problem होगा, कितने सारे chapters आएंगे और तुमने थोड़ा यहाँ लिखा है थोड़ा वहां लिखा है, and in the last day when you want to study थोड़ा यहाँ है वहां ऐसा problem हो जाएगा. अरे chemistry लिखा है इसमें maths लिखा है, ऐसा हो जाता है. So ऐसा मत करना. keep different books for different subjects. ठीक है. अभी जैसे मैंने सपोज यूनिट्स मेजरमेंट्स चालू किया, हो सकता है कोई दूसरा टीचर आया और उसने सपोज मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया, तो व्हाट यू कैन डू इज तुम हाफ बना दो एक बुक का. फिजिक्स बुक है ना, जैसे यू मेक 2 halves. सो सपोज आई एम टीचिंग यूनिट्स एंड डायमेंशन, राइट इट इन द फर्स्ट हाफ. कोई दूसरा टीचर आता है, you write that magnetism whatever he is teaching in the second half. Okay, but physics के लिए बुक अलग रखना, मैथ्स केमिस्ट्री अलग रखना, बायो जो भी है तुम्हारा सब्जेक्ट्स उसके लिए अलग रखना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इन द एंड स्टूडेंट्स अदरवाइज मेस अप. ओके, जब तुम 12th में जाओगे तब तुम्हें समझेगा कि अरे 11th में क्या गलती किया था मैं. सो वो होना नहीं चाहिए, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ. एंड we'll be noting things down. Also few things from the textbook I will be just telling you. Okay, कि ये important है, इसको छोड़ दो. अभी ये थोड़ा ऐसा होता है 11th standard में, बहुत सारा चीज होता है जो unimportant होता है. ओके, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ अनइम्पोर्टेंट मतलब उस पर कोई क्वेश्चंस नहीं आता, उसका कोई रेलेवेंस नहीं, वो ऐसे ही दिया है फॉर रेफरेंस पर्पस. ओके,
तो वो सब स्किप करने का, तो वो स्किप क्या करने का क्या नहीं वो मालूम होना चाहिए ना तुम्हें, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक होना चाहिए तुम्हारे सामने. तो टुडे इज फाइन, आई अंडरस्टैंड, बट नेक्स्ट लेक्चर all 9 of you that are attending today should get a textbook with themselves. Okay, so textbook सामने रहेगा तो मैं बोलूंगा कि भाई ये जो टेबल दिया है इसको कैंसिल करो, या ये पैराग्राफ है ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, तुम्हें टाइम मिला तो ही पढ़ना, या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारे कॉलेज एग्जाम में 100% आएगा, like that I'll give you markings. Okay, if you have the textbook in front of you, that is possible only then. So textbook ले लेना next time physics का. एंड और कुछ ऐसा कुछ डाइजेस्ट वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है. ओके, और कुछ भी रहेगा एक्स्ट्रा कुछ देना होगा तो क्लासेस विल प्रोवाइड यू. ओके, सो यू नीड नॉट वरी फॉर दैट. एंड नोट्स तो हम देंगे टीचर्स. ओके, वॉट एवर डेफिनेशंस एंड ऑल वो सब नोटबुक में लिखते जाना. ओके, वॉट एवर इज बीइंग टॉट. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, units and measurements. Write the name of the topic in your notebook. अगर किसी के पास फिलहाल नोटबुक नहीं होगा तो राइट इट इन जनरल रफ बुक, एंड बाद में फिजिक्स के लिए एक सेपरेट बुक बनाना उसमें लिख देना. ओके, हेलो. यस, हेलो. हाँ सर, जरा स्टूडेंट्स को मुझे बताना है कि प्लीज कैमरा ऑन करना ना, कैमराज ऑन नहीं है. okay, so madam is saying please on all the cameras so that madam can keep a tab. Okay, कोई लिख रहा है कोई नहीं लिख रहा है, ऐसा होता है कभी कभी, किसी का नेटवर्क चला गया कुछ हो गया, तो madam can guide me also. So I request all students put on the cameras. Okay, प्लस क्या होता है कभी कभी फेस देख के मुझे समझता है कि यार ये स्टूडेंट को नहीं समझा है. Okay, I need to repeat, then I will do that. Okay, so let's start with the first chapter. Notebook में लिखो units and measurements. Okay, units and measurements के नीचे मैं एक बहुत basic question पूछता हूँ. Okay, you can tell me wrong to wrong, no problem, but you have to tell. Just raise your hand and tell, or you can just say your name and just start answering. Okay, तो मैं एक basic सवाल पूछता हूँ. I'm sure at least some answer you'll be able to give. The question is, what is a physical quantity? What is a physical quantity? Physical quantity मतलब नेहा, you want to try? Physical quantity क्या होता है? Wrong to wrong, no problem. वो wrong answer से right answer build करने में ज्यादा अच्छा है. Okay, if I straight away give the right answer, yeah, you only tell the right answer, तो उतना मजा नहीं. Wrong answer, अगर if you give, then I will tell you why that answer is not complete, why the definition is not complete. बोलो, नेहा. Physical quantity क्या है? So physical quantity is like that can be measured with some measurement. Very good. Very good. Very good. And calculated. Perfect. Okay. Or almost perfect. बहुत अच्छा. Physical quantity क्या है? Neha told us. Yes, I agree. Any quantity that can be measured is called as physical quantity. जिसे हम measure कर सकते हैं, जिसका हम प्रमाण बता सकते हैं. प्रमाण मतलब कितना है, उसको हम बोलते हैं physical quantity. और अगर perfect definition चाहिए मतलब exact, तो you will say any quantity that can be accurately measured. Accurately मतलब समझा, जितना है उतना perfect बता दिया. अभी अगर मैंने बोला तुम्हें mass या say you bought potatoes and if I say it is 1 kg, then you exactly know 1 kg मतलब कितना होगा. अगर तुमने नेहा ने 1 kg potato लाया है and suppose अनुष्का ने लाया है 1 kg potato, there will be no difference, absolutely no difference in terms of measurement, because mass is a physical quantity that can be accurately measured. वही अगर मैंने इंटेलिजेंस के बारे में बोला, इंटेलिजेंस इवन दैट कैन बी मेजर्ड. आई कैन से नेहा इज इंटेलिजेंट एंड अनुष्का इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट. सो आई एम टेलिंग यू द मेजरमेंट ना, कौन ज्यादा है कितना ज्यादा है. बट कैन आई टेल यू एक्यूरेटली जस्ट बिकॉज आई से नेहा इज इंटेलिजेंट? हैव यू एक्यूरेटली अंडरस्टूड हाउ इंटेलिजेंट शी इज? नो. सो ऐसे क्वांटिटीज जिसको अपन एक्यूरेटली नहीं मेजर कर सकते ना, सिर्फ मेजर कर सकते, सिर्फ प्रमाण बता सकते हैं
कि अरे ज्यादा हुआ, बारिश ज्यादा हुआ या व्हाटएवर, तो ऐसे चीजों को अपन फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते। फिजिकल क्वांटिटी मतलब एक्यूरेटली, अगर मैं ऑफ दिस ऊपर नीचे, so that is the difference between measured and accurately measured. Okay, so we'll include that word also to be perfectly right. So पहला हम जो definition आज लिखने वाले हैं वो physical quantity का है। I hope my voice is clear. Write down first definition, physical quantity. Okay, इसके बाजू में लिखो any quantity that can be accurately measured is called as physical quantity. Any quantity that can be measured is called as physical quantity. Okay, now generally क्या होता है मालूम है, एक दो बार ऐसे भी हुआ है, मैं जब क्लास में पूछता हूँ ना व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो थोड़े बच्चे ऐसा भी जवाब देते हैं कि सर फिजिक्स में जो क्वांटिटीज आता है ना वो फिजिकल क्वांटिटी, और मैथ्स में जो आता है वो मैथमेटिकल क्वांटिटी। ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में सीखा तो फिजिकल क्वांटिटी, मैथ्स में सीखा तो मैथमेटिकल। इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे एरिया, एरिया हमने कहाँ सीखा है, मैथ्स में सीखा है, लेकिन इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? डेफिनेशन देखो क्या है फिजिकल क्वांटिटी का, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड। एरिया को तुम कर सकते हो ना एक्यूरेटली मेजर, तो एरिया को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, भले वो मैथ्स में पढ़ा हो, इट बिकम्स अ फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनी क्वांटिटी, भले वो मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो भी हो। ओके, इफ यू कैन मेजर इट, बायो में भी होता है, ओके, पल्स रेट एंड ऑल दैट, हार्ट बीट्स, काउंट्स, इफ यू कैन मेजर इट एक्यूरेटली इट बिकम्स अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव रिटन, फिजिकल क्वांटिटी लिखा। डिड वी राइट द डेफिनेशन, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी एक्यूरेटली। ओके, सो इसके नीचे हम एग्जांपल लिखेंगे, तो लिखो एग्जांपल, एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, speed, velocity, momentum, force, etc, etc. ओके, सो ये है फिजिकल क्वांटिटी। अभी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको मेजर करने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है। डू यू नो विच? मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की एक चीज की जरूरत पड़ती है। कोई बता सकते हो मेरे दिमाग में क्या है? लावण्या, कैन यू ट्राई? यूनिट। वेरी राइट। बिना यूनिट के तुम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते हो। फिजिकल मतलब बायो में भी सीखा हो, हार्ट बीट्स हो या पल्स रेट हो, उसके साथ या साउंड हो, उसके साथ कुछ यूनिट्स होता है। ओके, 20 डेसिबल, देन ओनली इट मेक्स सेंस। इफ आई से माय हाइट इज 5, देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड 5 व्हाट। सो सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, ये जो होता है इसको हम यूनिट्स बोलते हैं। बट ये फंडामेंटल होना चाहिए। फंडामेंटल मतलब क्या, आई मीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब क्या, ऐसे नहीं कि मेरे गांव में ही चलता है ये, मेरे गांव के बाहर किसी को पता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, जो भी हम यूज करते हैं इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जैसे मैं बोलूं 10 इंचेस, ओके, यू गो टू स्पेन ऑल्सो, दैट इंच, 1 इंच जितना है उसका डेफिनेशन चेंज नहीं होएगा। इधर का 1 इंच भी सेम है और स्पेन में 1 इंच सेम है। सो बोलना ये है कि ऐसा यूनिट लेने का जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यू कैन नॉट से आई विल यूज दिस एज अ यूनिट टू मेजर द साइज ऑफ अ बेंच। हैंड का स्पैन होता है ना, स्पैन पता है, हैंड के स्पैन से मेजर कर सकते हैं ना, या हाथ है सपोज, ऐसा मेजर कर सकते हैं ना हाथ रख के। कभी ना कभी तुमने भी किया होगा कि कौन लंबा है देखने के लिए, कौन सा बेंच लंबा है। तो दिस इज नॉट अ गुड यूनिट। क्यों? ये जो स्पैन है, स्पैन मतलब इसको बोलते हैं, हाथ का जो होता है ना इसको स्पैन बोलते हैं। ये हाथ है ना तुम्हारा, क्या, आई एम नॉट ड्राइंग एग्जैक्टली, लेकिन ये स्पैन है, उंगलियां, उंगलियों को यूज करके तुमने अगर मेजर किया, दैट इज नॉट अ गुड यूनिट। क्यों? तुम्हारा हाथ का स्ट्रक्चर अलग होगा, मेरा अलग होगा, कहाँ सेम होने वाला है। ओके,
आज तुम्हारा ऐसा है, कल तुम्हारा चेंज हो सकता है, हाथ बड़ा छोटा हो सकता है किसी का, छोटा तो नहीं होगा, खैर बड़ा ही होगा, तो that span will change. Okay, so that's not a good unit. So you should take a unit which is universally accepted, which does not change with weather, which does not change in years. ऐसा unit लेने. Okay, so units का definition हम लिखने वाले हैं. Units का definition लिखो नीचे. Units the standard used for measurement of a physical quantity is called as unit. The standard used for the measurement of a physical quantity is called as a unit. Standard को underline करो. Okay, इसके नीचे example देंगे. Next line पे example, meter, kilogram, Newton, Newton भी unit है. Seconds, seconds time का unit है. Seconds, joules, etc. Okay, somebody has just joined in. Who's that person? Can you just put on your mic and tell me कि तुम disconnect हुए थे इसीलिए join हुए कि just new, so that I can repeat if you are just new. Who joined now? Can you put on your mic and tell? Okay, I think it was our Vinayak class only. Chalo. Let's start now. So ये हुआ, दो चीज हमने देखा कि what is physical quantity, उसका examples, and secondly what is units और उसका example. Okay, अभी units अलग अलग सिस्टम होते हैं, यूनिट्स के अलग अलग सिस्टम होते हैं. आई एम श्योर यू आर अवेयर अबाउट दिस. ओके, बट लेट मी आस्क यू, ओके, कौन से सिस्टम होते हैं यूनिट्स के? एनीबॉडी कैन से? कौन से सिस्टम होते हैं यूनिट्स के? नेहा ट्राई. नहीं, याद नहीं. आशिता? So scalar and vectors. Scalars and vectors are not types of units. Scalars and vectors are types of physical quantity. अगर मैं तुमसे पूछता कि can you tell me physical quantity कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, और how will you classify physical quantity, तो तुमने जो जवाब दिया वो सही है. physical quantity दो प्रकार के होते हैं, या तो कोई भी physical quantity scalar होगा, just because you said I will talk about this, scalar होगा, या फिर वो vector होगा. Now, what is scalar? Scalars are those physical quantities which have no direction. And what are vectors? Vectors are physical quantities which have direction. Okay, so no direction, scalar. Have direction, vectors. So ये physical quantity का classification. लेकिन I am not looking for that. मैं units का classification जानना चाहता हूँ. Units को कैसे classify करते हैं मैं बताता हूँ. These are the systems in which units are mentioned. CGS सुना होगा ना, CGS, MKS. What is CGS? CGS का full form है सेंटीमीटर सेंटीमीटर. G से क्या होता है बोलो? C फॉर सेंटीमीटर. G से क्या होता है? ग्राम. S से क्या होता है? सेकेंड्स. Okay, so
ये है CGS सिस्टम। दूसरा है MKS, MKS। ओके, चलो बोलो MKS सिस्टम के लिए क्या लिखो? MKS सिस्टम में M स्टैंड्स फॉर व्हाट? मीटर। K stands for what? Kilogram. And S stands for what? Seconds. Okay. ऐसा FPS भी है, सुना नहीं होगा तुमने ये, बिकॉज हम इंडिया में सिर्फ ये फॉलो करते हैं, MKS या फिर CGS, लेकिन FPS भी है। ये जनरली यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन में वगैरह फॉलो होता है, बट यू नीड टू स्टडी अबाउट दिस। दिस ऑल्सो कैन बी आस्क्ड इन योर कॉलेज एग्जाम्स। इसका नाम है फुट pound seconds. Okay, so this stands for what? Length. This stands for what? Mass. And this stands for what? Time. So अगर length is in foot, मैंने बोला कि ये रूम का लेंथ 4 फीट है, तो कौन से सिस्टम में बोला? FPS। मैंने अगर बोला ये रूम का लेंथ 10 मीटर्स है, तो कौन से सिस्टम में बोला? MKS। मैंने अगर बोला कि ये रूम का लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो कौन से सिस्टम में बोला? CGS। मैंने अगर बोला कि ये रूम का लेंथ 80 इंचेस है, इंचेस, तो कौन सा सिस्टम हुआ? नो सिस्टम, कोई भी सिस्टम नहीं। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई तो एक सिस्टम में होना ही चाहिए, इनमें से कोई सिस्टम में नहीं। किलोमीटर्स में बोला 80 किलोमीटर्स, तो भी कोई भी सिस्टम नहीं। डोंट से MKS सर देखो के किलोमीटर्स, ये के किलोमीटर्स का नहीं है मेरे भाई, के किलोग्राम का है। ओके, तो किलोमीटर्स में बोला तो कोई भी नहीं, बिकॉज सी किलोमीटर्स में कब होगा? ये सब लेंथ को स्टैंड करता है ना, इसमें आता है क्या किलोमीटर्स? कहीं पे नहीं। देखो क्या है उसमें, फुट, मीटर और सेंटीमीटर, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, वैसे ही मैंने अगर मास बोला 30 kg तो MKS सिस्टम, 30 ग्राम्स तो CGS सिस्टम, 30 पाउंड्स तो FPS सिस्टम, और अगर मैंने बोला 30 टन्स तो नो सिस्टम, 30 मिलीग्राम्स तो नो सिस्टम। ओके, ऐसा होता है। टाइम हर एक में सेकंड्स में ही है, देखो। ओके, एक और होता है फोर्थ, SI सिस्टम। SI का फुल फॉर्म तो जानते होंगे, SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल जो है उसको SI सिस्टम बोलते हैं। ओके, सो ये कॉपी कर देना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा ना ये तो ऊपर लिख देना, ये पार्ट नहीं लिखा तो चलेगा। ये लिखना अगर है तो इसके ऊपर लिख देना, यहाँ पे आएगा। ओके, कि लेंथ, मास, टाइम। सो टॉपिक का नाम ले देना सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और बाद में कॉपी कर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखा, अब ये कॉपी कर दो। ओके, कॉपीड, आगे जाऊं? फाइन, तो अभी सुनो,
दो प्रकार के फंडामेंटल, दो प्रकार के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. एनी आइडिया विच टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर? फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं ना, क्वांटिटीज, वो दो प्रकार के होते हैं. आई विल टेल यू. एक का नाम होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक का नाम होता है डिराइव्ड क्वांटिटी. वापस बोलता हूं, कौन से दो प्रकार के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं? One is called as fundamental physical quantity, one is called as derived quantity. Okay, so कोई भी quantity है वो तुम दो में क्लासिफाई कर सकते हो. वो या तो फिजिकल क्वांटिटी या तो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा या फिर derived quantity होगा. Okay, so I'll just make a classification like this. You physical quantities are of two types. What are the two types? या तो ये होगा या तो ये होगा. पहला वाला कौन सा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल भी बोल सकते हैं उसको, फंडामेंटल क्वांटिटी. या फिर दूसरे का नाम क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी. ओके, सो लिखो नेक्स्ट लाइन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. Classification of physical quantities. Okay, तो लिखो physical quantities are of two types. Please, physical quantities can be classified under two types. Physical quantities can be classified under two types. Okay, and show this classification. Physical quantity, fundamental quantity, derived quantity. ओके, अभी हम एक एक करके देखेंगे कि क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी. जस्ट फर्स्ट मेक दिस क्लासिफिकेशन. Okay, let's start. Fundamental क्या है, derived क्या? What are fundamental quantities? Fundamental quantities are those quantities which do not depend on any other quantity for their measurements. I repeat, what did I say? Fundamental quantities क्या है? Fundamental quantities वो है जो किसी और quantity पे dependent नहीं है खुद के measurement के लिए. जैसे mass. Mass किसी और चीज पे dependent नहीं है, mass खुद अकेला है. ओके, मास को मेजर करने के लिए और किसी को मेजर करने की जरूरत नहीं. ओके, जैसे लेंथ भी फंडामेंटल है. लेंथ नाप रहे हो तो सिर्फ लेंथ ही नाप रहे हो. ओके, टाइम इज आल्सो फंडामेंटल. वेयर एज डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगा? डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी से बनता है. ऐसे बहुत सारे हैं, 7 हैं, सातों में बताऊंगा, लेकिन एग्जांपल के तौर पे अभी सिर्फ 3 लिखा है. डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी ये फंडामेंटल क्वांटिटी से बनता है. फॉर एग्जांपल, इफ आई से स्पीड, स्पीड का क्या होगा? व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. व्हाई इज स्पीड डिराइव्ड? बिकॉज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है कि नहीं? स्पीड को मेजर करना है तो तुम्हें डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा और टाइम मेजर करना पड़ेगा. सो डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करोगे तो स्पीड, ये फिजिकल क्वांटिटी बनता है. ओके, और कौन सा? चलो फोर्स भी लिख सकते हैं अपन. फोर्स, व्हाई फोर्स? बिकॉज फोर्स is a physical quantity which is derived from mass and acceleration. Mass into acceleration is force. तो ये एक है physical quantity, ये एक है. When they both get multiplied, you get a third physical quantity or a new quantity called as force. Momentum, momentum. Momentum is what? Product of mass and velocity. Okay.
सो जब मैं वेलोसिटी और मास को मल्टीप्लाई करता हूँ तब मुझे मोमेंटम मिलता है। Whereas these physical quantities, the first ones, they are independent. ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे करंट को मेजर करना है तो बस करंट को ही मेजर करना है, करंट किसी और से नहीं बनता है। ओके फिर ऐसे 7 है। आई विल मेक अ थिंग लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके सो अभी हम क्या करेंगे, ये एग्जांपल के तौर पे लिख दो बस, इसको हम ढंग से एक टेबुलर मैनर में पढ़ेंगे। तो जो तुमने लिखा है उसके नीचे एग्जांपल, इसके 5 और इसके भी 5 करेंगे। और कोई दे सकता है एग्जांपल डिराइव्ड क्वांटिटी का? और एग्जांपल कोई दे सकते हैं? और density is equal to mass upon volume. Perfect, I agree. Density is a derived quantity. Why? Because density depends on mass and volume. और कोई बता सकता है तुमने पढ़ा हुआ? कितने सारे एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या है? डिराइव्ड है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो क्या है, वॉल्यूम खुद थोड़ी अकेला है, वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट पे डिपेंडेंट है वॉल्यूम। ये आपस में मल्टीप्लाई होके वॉल्यूम दिलाते हैं तुम। ओके तो वॉल्यूम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी डिराइव्ड क्वांटिटी है। फिर हीट, वर्क, पावर, बहुत सारे जो भी आगे वाले हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से जो आते हैं वो डिराइव्ड हो गए। ओके सो जस्ट मेक द लिस्ट of examples first, then we'll make a nice tabular manner in which we will write all the units, fundamental quantity and their symbols. Okay, this is a request from madam also. Please put on your cameras. Ashita, Reshma, Akansha Patil, please put on your cameras. Divya Wag. Okay, done. Ashita More, please put on your camera. चलो अभी हम एक लिस्ट बनाएंगे और वो लिस्ट के जरिए तुम्हें समझेगा कि कौन से फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल है। 7 ही है ऐसे क्वांटिटीज व्हिच आर फंडामेंटल। ओके आई जस्ट टोल्ड यू द डेफिनेशन। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजर। Whereas ये सारे quantities क्या है? Derived quantities क्या है? Derived quantities are those quantities which depend on the fundamental quantities for their measurements, which depend on other quantities for their measurements. Okay, तो इनके formula होते हैं in short, whereas these don't have a formula. These are straightforward. Okay, mass का क्या formula है? सीधा है, mass ही होगा. Whereas if you say weight is different. What is weight? Weight is a derived quantity. Weight is mass into acceleration. M into G is weight. तो weight is a derived quantity. उसका formula होता है, लेकिन mass is what? Fundamental quantity. Okay. So we'll write the definition. अभी तक हमने definition नहीं लिखा है, तो write down इसके नीचे fundamental quantity. We didn't write the definition, right? अभी हम लिखेंगे ना, लिखो fundamental quantity, उसके बाजू में लिखो those physical quantities which do not depend on any other quantity for their measurements. Those physical quantities
which do not depend on any other quantity for their measurements are called as fundamental quantities. Okay, next line पे लिखो. There are 7 fundamental quantities. There are 7 fundamental quantities. 7 ऐसे quantities हैं जो fundamental है. सिर्फ 7. I will mention all 7. There are 7 fundamental quantities and 2 supplementary quantities. And 2 supplementary. 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 Supplementary quantity क्या है? I will explain. फिलहाल fundamental quantity पे ही ध्यान देना. There are 7 fundamental quantity and 2 supplementary quantities. Okay. तो कौन से हैं वो 7 fundamental quantities? We'll make a list of that. Fundamental quantity. SI units. Symbol. So ये है 7 fundamental quantities, जिनमें से कुछ 5 तुमने लिख चुके हो बुक पे. ऐसे quantities जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है. ये सब पूछते हैं कॉलेज एग्जाम के लिए. ठीक है, दिस ऑल कम्स. पहला फंडामेंटल क्वांटिटी हम करेंगे लेंथ. लंबाई. लेंथ मीटर में होगा. अच्छा, कोई वर्नाक्युलर मीडियम से है? हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, ऐसा कोई है? तो उनके लिए मैं हिंदी मराठी वाले फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम यूज करूंगा. ओके, कोई है ऐसा? प्लीज लेट मी नो. ओके, आई अज्यूम नन. लेंथ के बाद नेक्स्ट है मास. मास किस में होगा? किलोग्राम. एसआई यूनिट्स क्या है मास का? एसआई मतलब एमकेएस, किलोग्राम. शॉर्ट फॉर्म क्या है? केजी. तुम सिर्फ के नहीं डाल सकते. मनचाहा यूनिट्स, मनचाहा सिंबल नहीं डाल सकते, केजी लिखना पड़ेगा. ओके. टाइम. टाइम का बोलो व्हाट इज? एसआई यूनिट्स सेकेंड्स. और इधर क्या आएगा? डोंट राइट सेक. ये अपन बोलते हैं 4 सेक, 5 सेक, गिव मी 1 सेक, लेकिन सेक मत डालना. फिजिक्स में एस लिखने का सिर्फ. ओके, तो ये मैं क्लैरिफाई करूंगा. यूनिट्स हैव टू बी, symbols have to be perfect. Okay, you cannot use your own symbols. Temperature. Temperature किस में मेजर होता है? Kelvin. Symbol क्या होगा? कैपिटल के. Why capital? Because it's a name of scientist. Name of scientist रहेगा तो कैपिटल आता है. फिर इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट किस में होता है? एम्पियर में. एम्पियर किस में आएगा? कैपिटल ए. लुमिनस इंटेंसिटी, ये तुमने सुना नहीं होगा अभी तक.
और आगे सुनोगे भी नहीं इसके बाद। लुमिनस इंटेंसिटी, इसका फिजिक्स में कहीं जिक्र नहीं होगा पूरे फिजिक्स में। ओके, वेदर यू डू बीएससी ऑल्सो आगे। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट कितना ब्राइट है, हाउ ब्राइट इज लाइट। brightness of light is measured in terms of luminous intensity. luminous मतलब शाइन होने का, इंटेंसिटी, luminous मतलब जो भी ब्राइट है उसको luminous बॉडी बोलते हैं, लाइट वाला बॉडी। इंटेंसिटी मतलब कितना पावरफुल है लाइट, कितना इंटेंस है। luminous intensity is measured in candela. कैंडल होता है ना, कैंडल, उससे ये नाम गिरा है कैंडेला। इसका सिंबल होता है सीडी। और लास्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका थोड़ा आइडिया है तुम्हें? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल, है ना, 4 मोलर सॉल्यूशन, 10 मोलर सॉल्यूशन, 10th में यूज किया होगा ये वर्ड मोल, MOL इज अ शॉर्ट फॉर्म। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, इसीलिए उसको फंडामेंटल बोलते हैं। प्लीज मेक दिस, टेक दिस टेबल डाउन। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये उनका सिंबल है। Okay, all done. Is anybody still writing? Please let me know, because this is the reason why we are telling to keep the cameras on. Please camera on रखो, समझता नहीं है नहीं तो। ओके, डन। आगे जाऊं। अभी मैंने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ऐसे लिखा था। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है मैं बताता हूँ। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मतलब क्या? सप्लीमेंटरी क्वांटिटी मतलब ये फंडामेंटली होते हैं। फंडामेंटल मतलब ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, खुद से होते हैं, इनकी कोई फॉर्मूला नहीं होते, जस्ट लाइक दिस 7 क्वांटिटीज। लेकिन साइंटिस्ट ने इसको बाद में डिस्कवर किया। डिस्कवर मतलब ये इतने फ्रीक्वेंटेड नहीं है। ओके, इतने फ्रीक्वेंट नहीं होने के कारण वो पहले फट से नजर नहीं आए। बाद में साइंटिस्ट को समझा रहे हाँ ये भी तो फंडामेंटल है, इनको भी इंक्लूड करना चाहिए था। तो अभी क्या करे, तो उन्होंने उनका नाम दिया, चलो सप्लीमेंट्री रखते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री मतलब क्या?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री? कभी तुमने सुना होगा, अरे आई टेक सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स मतलब क्या? मेन न्यूट्रिएंट्स तो तुम लेते ही हो, तुम्हारा विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी है मेन है, प्लस तुम्हें ऐसी भी चीजें चाहिए होती हैं जो मेन खाने में नहीं आती, उसके लिए बोनमीटा वगैरह लेना पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्स। ओके, बहुत सारे होता है, राइबोफ्लोविन वगैरह बहुत सारे होते हैं, विटामिन के तक जाता है, वो नॉर्मल अपने फूड में नहीं मिलता है, तो वो सप्लीमेंट्स के द्वारा अपने बॉडी को पहुंच सकता है, इसीलिए उनको सप्लीमेंट्स बोलते हैं। मतलब मेन फूड्स एंड देन सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स मतलब ये नहीं कि ये इसके बगैर चलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और वो भी इंपॉर्टेंट है, बट दे आर नॉट टू द मेन लिस्ट। तो वैसा ही ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, दिस इज द मेन लिस्ट एंड दिस इज सप्लीमेंट्री, एडिशनल। ओके, तो एडिशनल क्वांटिटी कौन से? ऐसे दो ही हैं, तो आई विल राइट इट इन द सिमिलर मैनर। इधर लिखूंगा फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, SI यूनिट्स, सिंबल। ओके, दो ऐसे क्वांटिटीज हैं जो इस लिस्ट में है, एक का नाम तुमने सुना है, एक का नाम तुमने नहीं सुना है। पहला जो सुना है वो प्लेन एंगल, उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। तुम बोलोगे सर प्लेन एंगल मैंने नहीं सुना है। नहीं, तुमने सुना है। प्लेन एंगल मतलब जिसको तुम ज्योमेट्री में या 10th स्टैंडर्ड तक एंगल बोलते थे, सिर्फ एंगल, है ना, 30 डिग्री 40 डिग्री। ये क्या हुआ? ये सप्लीमेंट्री हुआ, आई मीन ये फंडामेंटल हुआ ना। फंडामेंटल मतलब किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल, बट दे आर नॉट टू द मेन लिस्ट, इसीलिए they are called as supplementary quantities, but they are very much fundamental as in they do not depend on other quantities for their measurement. Plane angle क्या है? units plane angle का, it is measured in radians। तुम लोग डिग्रीज बोलते थे, लेकिन जो डिग्रीज होता है ना वो CGS यूनिट्स है, SI यूनिट्स क्या है? रेडियन। ओके, डिग्रीज ऑल्सो यूनिट, 40 डिग्रीज 50 डिग्रीज, आई एग्री, बट वो किस में होता है? CGS में। यहाँ हम MKS या फिर SI लिख रहे हैं। सो रेडियन सिंबल क्या है उसका? रैड, RAD। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ये तुमने नहीं सीखा है, और अगेन ये वापस तुम्हें आने नहीं वाला है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में आएगा, ये तो कभी भी नहीं आएगा। लुमिनस इंटेंसिटी ये सिर्फ एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th स्टैंडर्ड में आएगा, वो सिर्फ एक ही सेंटेंस में आएगा, गॉस थ्योरम करके, उसमें ही आएगा, बाकी इसका कुछ जिक्र नहीं है सॉलिड एंगल का। फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल मतलब 3D वाला एंगल, 3D मतलब 3 डायमेंशनल एंगल। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज ये कोन है, कोन, तो एक कोन के बीच में जो एंगल होगा ना, इसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। 30, इसे स्टे रेडियंस में मेजर होता है, SR। ओके, स्टे रेडियंस, रेडियंस में नहीं, किस में मेजर होगा? स्टे रेडियंस। स्टे रेडियंस इज द यूनिट, ऐसे लिखा जाता है स्टे रेडियंस। एक मिनट, इसको पहले डिलीट कर देता हूं। स्टे रेडियंस और इसका शॉर्ट फॉर्म है SR। ओके, तो अगेन व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल मतलब 3 डायमेंशनल एंगल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी, ये कोन है, ये सर्कल है, तो कोन बना दिया, एक कोन के बीच का जो एंगल हो गया वो सॉलिड एंगल। या फिर तुम्हारा ये सीलिंग है, फ्लोर पे बैठे हो तुम और ऊपर की तरफ देखो, ये सीलिंग है तुम्हारी, तो तुम जहां बैठे हो सपोज ये है, तो ये एंगल क्या बना रहा है यहाँ? तो वो हो गया सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल। ओके, ये पूरा आ जाएगा, मतलब इट्स नॉट जस्ट यहाँ से यहाँ, पूरा पूरा जस्ट लाइक अ कोन आएगा। ये अगर सीलिंग है ना, तो हर एंड से ऐसे 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 ऐसे, तो ये वाले एंगल को सॉलिड एंगल। आई होप इट इज क्लियर। प्लेन एंगल इज प्लेन एंड सॉलिड एंगल इज मोर देन वन प्लेन। तो ये कॉपी करना, ये मत लिखना। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज लिखना, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और उसके नीचे देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और ये लिख लेना। एंड जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर डन। ओके।
Okay, done. Lavanya still writing? Done. Okay, चलो. So अभी हम जाएंगे. I hope you have understood fundamental quantity and supplementary quantity. Okay, तो अभी हम जाएंगे derived quantity की ओर. तो लिखो derived quantity. Number 2 derived. Number 1 was what? Fundamental quantity. Number 2 is derived quantity. तो लिखो derived quantity, इसका definition बता दो. Derived quantity के बाजू में लिखो, derived quantities are those quantities which depend on derived quantities are those quantities which depend on other quantities for their measurements. Which depend on other quantities for their measurements. Okay, इसके नीचे again we'll make a list just like we did earlier, but this time I'll just give 1 or 2 and I'll ask you to complete. Okay, बाकी का तुम्हारे हिसाब से कर देना. Okay, derived quantities कौन से होते हैं? बाकी सारे, ये 7 फंडामेंटल है और बाकी सारे जो भी है ना दुनिया के, बाकी सारे क्वांटिटीज वो डिराइव्ड है, इनसे बने हुए. सो पहला क्या आएगा बोलो? फिजिकल क्वांटिटी. दूसरा क्या आएगा? यूनिट्स. तीसरा क्या आएगा? सिंबल. यूनिट्स, सिंबल. राइट, 5 और 6. कौन सा लिखोगे तुम पे है. ओके, आई वुड से 1 और 2 आई विल राइट फोर्स. ये एसआई यूनिट्स है. एसआई यूनिट्स क्या होता है? न्यूटन. ऑब्जर्व करना, यहाँ पे छोटा एन आएगा, इधर छोटा एन आएगा. न्यूटन फुल फॉर्म लिखते हो, क्योंकि अगर तुमने कैपिटल एन लिखा तो इट बिकम्स द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. दिस बिकम्स द साइंटिस्ट न्यूटन हिमसेल्फ, या आइजैक न्यूटन का नाम. लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? यूनिट्स. इसलिए जब तुम फुल फॉर्म में लिखोगे तो उसको स्मॉल लिखने का, सिंबल में लिखोगे तो बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट इट विल बिकम कैपिटल. दिस इज वन ऑफ द रूल फॉर राइटिंग यूनिट्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो आई रिपीट, न्यूटन का ये वाला एन छोटा लिखना अभी मैटर करता है. 9th 10th में मैटर नहीं कर रहा था. टीचर यूज्ड टू स्टिल गिव यू मार्क्स, और इधर कैपिटल आएगा. बाकी तुम तुम्हारे हिसाब से लिख दो. अभी मोमेंटम पूछा, मोमेंटम. तो मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होएगा? कोई बता सकता है माइक ऑन करके? मोमेंटम का एसआई यूनिट. मोमेंटम पी से डिनोट होता है, 9th स्टैंडर्ड याद करो. मास इनटू वेलोसिटी. मास किस में होता है? किलोग्राम. वेलोसिटी किस में होता है? मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पे क्या लिखोगे? ये चीज आएगा, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड. और इधर क्या आएगा? केजी मीटर पर सेकेंड. ओके, एरिया ले सकते हैं. एरिया, एरिया किस में होता है बोलो? मीटर स्क्वायर. इधर क्या आएगा? एम स्क्वायर. Okay, complete the rest. You can write velocity, density. Velocity units क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड. इधर आएगा m/s. डेंसिटी, डेंसिटी किस में होता है? केजी पर मीटर क्यूब. किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब. केजी पर मीटर क्यूब.
एक और लेते हैं, कौन सा ले सकते हैं? Come on, suggest something. Speed लें, velocity लिया है ना already. Acceleration. What is acceleration? Meter. Meter per second square. That's right. Okay, please complete this table. These are derived quantities. They depend on other quantities for their measurement. Akanksha, can you just read out the definition of derived quantity? देखो क्या लिखा है derived quantity? Derived quantities are those quantities which depend on other quantities for their measurements. Perfect. And you can see ये सारे 6 के 6 quantities ये किसी और quantities पे dependent है, इसीलिए हम इसको derived. Okay, please copy that. And just give me a thumbs up or tell me when you are finished. Okay, so I will not know whether you're writing or not, whether you are finished or you're just waiting. I will not know because camera में सिर्फ face दिखता है, तो whether you're writing or not, I will not be able to make out. Okay, sure. Thumbs up from 2 or 3 means you're finished. Now, there is something जैसे ये fundamental quantity and derived quantity है, वैसे ही there is something called as fundamental unit and derived unit. अब obvious है fundamental unit क्या होगा, derived unit क्या होगा. The fundamental unit का definition, the unit of a fundamental quantity is called as fundamental unit. तो derived unit का क्या होगा definition? The unit of a derived quantity is called as derived unit. Okay, it is easy, but nevertheless it is asked, and if you don't write, if you don't answer, you won't get marks. Okay, so तुम्हें पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं, क्या पूछते हैं एग्जाम में, क्या नहीं. तो उसके नीचे लिखो fundamental units. Fundamental units. पहला लिखो fundamental unit में the unit of a fundamental quantity. The unit of a fundamental quantity is called as fundamental unit. The unit of a fundamental quantity is called as fundamental unit. Example देना नीचे, क्या होगा fundamental quantity का units? पहले जो लिखा था ना उसमें से 2-3 लिख सकते हो. kg, comma, meter m, comma, seconds. Units of a fundamental quantity है ये, तो इनको बोलते हैं fundamental units. 2-3 example देना, kilogram, meter, seconds, ampere, so and so. Derived unit खुद से लिख सकोगे? क्या आएगा बोलो? The unit of a derived quantity is called as derived unit. और example 2-3 लिख देना, Newton, जैसे Newton, Joule, वूल, जो भी तुम्हें लगता है 2-3 लिख देना. The unit of a derived quantity is called as derived unit. और example नीचे. Okay, done all of you. Next page आए. Okay, तो इसके नीचे लिखो rules for writing units. Rules for writing units.
अभी कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, बिकॉज ये रूल्स फॉलो नहीं किए तो डेफिनेटली तुम्हारा हाफ मार्क कटेगा इन द एग्जाम। ओके, तुमने जैसे फोर्स लिखना है, फोर्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन, तुमने एन लिख दिया। ओके, स्कूल लेवल तक टू बी ऑनेस्ट इसको कंसिडर किया जाता है, बोर्ड एग्जाम में वगैरह बोलते हैं वो लोग मार्क्स काटेंगे, लेकिन काटते नहीं है। यहाँ पे डेफिनेटली पहले ये गलती पकड़ेंगे और बाद में देखेंगे तुमने आंसर क्या लिखा है। ओके, इधर सीधा काटेंगे, माइनस हाफ लिखेंगे। सो there are certain rules for adding the units. Let's check what those rules are. ये theory question भी आता है, what are the rules? Okay, so let's make a list. सबसे पहला जो रूल है वो मैं बता रहा हूँ यूनिट लिखने के लिए। लिखो, number 1, the names of scientists, the units named after scientist, ऐसा लिखना। So sorry, the units named after scientist the units named after scientist, if written in short form, should be in capital. Okay, जैसे न्यूटन named after Isaac Newton, joules named after James Joule, watt सुना है ना, power watt, ampere, volt, ये सब named after scientist है, Kelvin, इसीलिए कैपिटल है। ओके, तुमने ऐसा लिखा तो रॉन्ग होगा, 4 न्यूटन, 5 जूल, ये रॉन्ग मेथड हुआ, ये राइट मेथड है। ओके, सो ऐसा लिखने का। Okay, so Neha, can you repeat? फर्स्ट क्या लिखा था बोलो, फर्स्ट क्या लिखा था बोलो? Neha, please tell the first. So you're asking me because I was disconnected and I was not knowing that you Okay, were asking. So perfect पता नहीं, but the sentence, the but this units was the thing. This named was the after thing. given a scientist. Yeah, the symbols of the units named after scientists should be written in capital. Symbols of the units named after scientists should be written in capital. Okay, इसीलिए मैंने ये कैपिटल में लिखा। अभी second, the full form of the units named after scientists should be written in small letters. Okay, मतलब ये कैसे आएगा, 4 न्यूटन्स ऐसे आएगा, 4 न्यूटन, 5 जूल, एग्जाम्पल के तौर, ये एग्जाम्पल करके लिख देना नीचे। आई होप यू हैव रिटन द एग्जाम्पल्स। सो जब हम पूरा लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखने, 5 watts
ऐसा है. Okay, please write like this. Done. लिखो next third. The short forms of the units should not be written in plural. The short form of the units should not be written in plural. The short form of the units should not be written in plural. जैसे ऐसे नहीं लिखने का 4 newtons, it's wrong. You cannot say 5 joules. Okay, 6 watts, ऐसे नहीं बोल सकते. Short forms cannot be written in plural. Short forms को कैसे लिखने का? Short form में लिखना है, I mean plural में लिखना है तो ऐसे लिखने का 4 newtons पूरा लिखना पड़ेगा. Short form cannot be written. 5 watts ऐसा होगा. This is right method. 6 joules. This is wrong method. 4 ns. Okay, 5 ws. 6 js. ये wrong हो जाए. Okay, so ये भी लिख दो एग्जाम्पल के तौर पे. Okay, fourth rule. Fourth लिखो. There should not be any punctuations. Punctuations ऐसे लिखते. Punctuation. Punctuations मतलब क्या? Punctuations मतलब comma, full stop, exclamation mark. ये सब नहीं डालने का units के आगे. There should be no punctuations after writing the units. There should be no punctuations after writing the units. Okay. अभी यहाँ तो एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है इसीलिए कॉमा डाला है. ओके, ये मत कंसिडर करना. बट इन द एग्जाम यू कैन नॉट राइट 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, ऐसे नहीं लिखने. ओके, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? 4 न्यूटन, अगर 3 फोर्स निकालने बोला 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, ऐसे आएगा. फुल स्टॉप भी नहीं डालने का. देयर शुड बी नो पंक्चुएशन. ओके, सो यू कैन नॉट राइट लाइक दिस 4 न्यूटन, ये रॉन्ग मेथड हुआ. कॉमा 6 न्यूटन, कॉमा 8 न्यूटन, फुल स्टॉप, ये रॉन्ग मेथड हुआ. ये राइट मेथड है. देयर शुड बी नो पंक्चुएशंस आफ्टर राइटिंग द यूनिट्स. नोट, ये 4 रूल हैं. और भी हैं 3-4, लेकिन वो मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा. ओके, सो टुडे इट वाज ओनली फॉर this much time, 1 hour 15 minutes, because next time more students will join in. Okay, so they should not miss out. तो हम रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे. So if you have your friends and all, please tell them to attend. Okay, so कुछ मिस नहीं हुआ. नेक्स्ट टाइम से we can go forward. Okay, so I hope you understood this much. Next lecture से पहले ये सब पढ़ के आना और ये लिख देना. ये सब मैं पूछूंगा. Okay, next lecture. लिखना कुछ नहीं है. No homework. Just read it nicely and you should be able to answer whatever I asked in the next lecture. Okay, so we stop here. Thank you very much. Bye all of you.